Good morning, students. I hope you all are hale and hearty. I am Benazir Fatima and I'll be taking your chemistry classes for this session 2020-2021. Due to serious pandemic COVID-19, we are not able to learn in the physical environment of classroom. Therefore, we are learning through online platform. I have provided you video lectures. In case of any doubt, any query related to the content, you can contact me on my WhatsApp number which is provided on Google Classroom. So dear students, let's start with the class. Put in all your efforts and perform above your caliber. God bless you. Thank you. A warm welcome, dear students. Our topic for today is mole concept. But before that, we have to understand some terms so that we can better understand our topic. You know, there are 118. That means 118 elements are in periodic table. And how do we define elements? Elements ko we say that elements are pure substances. And what are pure substances? Pure substances means they are made up of same kind of atoms. So elements are made up of atoms, and atoms are very small in size, and they are made up of three main fundamental particles: proton, neutron and electrons. We know that electron and proton together called proton and neutron together called nucleons. The number of protons decide their atomic number, and the sum of proton and neutron decide their atomic masses. Right? This is the structure of an atom, that proton and neutron are present inside the nucleus and electrons revolve around the nucleus in shells. This much you have done in your class 9th. So the proton and neutron together forms the mass of an atom, जिसको हम बोलते हैं atomic mass. Right? Now, atomic masses can be given or can be represented through three ways: relative atomic mass, absolute atomic mass, also called exact atomic mass, and gram atomic masses. You must have seen periodic table. All the 118 elements are present in that periodic table along with their atomic number and atomic masses. And in periodic table, the masses which are given, they are actually relative atomic mass. वो relative atomic mass है, सिर्फ atomic mass नहीं है, उसके साथ एक word लगा हुआ है relative. तो first of all we will talk about relative atomic mass, right? कि what is this relative atomic mass? Relative atomic masses are dimensionless physical quantity. In 1961, IUPAC, International Union for Pure and Applied Chemistry, or we can say International Union of Chemists, they selected a new unit for expressing the atomic masses, and they took carbon 12. That means the isotope of carbon having atomic mass 12 as standard to express the masses of all the atoms. Right? In relative atomic mass, relative means considering in relation to something else. Considering in relation to something else, यानी एक क्वांटिटी को डायरेक्टली ना बता के दूसरे से कंपेयर करके बताया जा रहा है. एक एटम के मास को डायरेक्टली ना बता के दूसरे एटम से कंपेयर किया जा रहा है, और वो दूसरा एटम कौन सा है? वो है हमारे पास C12. मासेस को C12 के रेफरेंस से या कंपेयर करके बताया गया है, या इन रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 बताया गया है. दैट इज वाई उसको हम बोल रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास. राइट? तो एक क्वांटिटी को डायरेक्ट ना बता के दूसरे से कंपेयर करके बताया जा रहा है, एंड कंपैरिजन इज डन विद द मास ऑफ कार्बन. Now we should have a definition of relative atomic masses. So relative atomic mass is defined as the number which indicates how many
times the mass of one atom. The mass of one atom is heavier in comparison to 1/12 part of mass of one carbon 12 atom. This is the definition of relative atomic mass, जिसको हम abbreviated form में बोलते हैं RAM or RAM. This is not related to your computer. This here the meaning of full form of RAM is relative atomic mass. And how do we define this? That it is a number which indicates how many times the mass of one atom is heavier in comparison to 1/12 part of mass of one carbon atom. यानी कोई भी एक atom कितना heavy है, किससे कंपेयर कर रहे हैं? 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, उससे कितना हेवी है, एंड दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास. So the definition of relative atomic mass can be written in the form of formula like this. We are comparing the masses of one atom of element with 1/12 part of mass of one carbon atom. So the relative atomic mass can be written as relative atomic mass is equal to mass of one atom of element. I told you elements are made up of atoms, so we are considering only one atom of element. So mass of one atom of element upon or divided by 1/12 of the mass of one atom of carbon 12. Based on this, the relative atomic masses of hydrogen comes out 1.008, oxygen 15.9994, or it can be written as 16, and mass of sodium is equal to 23. What does it mean? Like mass of sodium is 23. So what does it mean? It means that one atom of sodium is 23 times heavier as compared to 1/12 mass of one carbon 12 atom. I am repeating. What is, if I am saying the mass of sodium is, or relative atomic mass of sodium is 23. So what does it mean? It means that one atom of sodium is 23 times heavier as compared to 1/12 mass of one carbon 12 atom, right? And masses of these elements are represented are given or represented on atomic mass scale, right, in terms of atomic mass unit, or AMU. AMU is atomic mass unit. It can be written as only U. What is meaning of this U? The U means on unified scale. On unified scale, right? Therefore, in periodic table, the masses of all the elements are actually relative atomic masses. And these relative atomic masses are much easier and convenient in solving numerical problems, right? As atoms, I told you, are very, very small. Their masses are also very small in fractions to calculate. The calculation is very difficult if we'll go by the exact masses. So we, whenever we do calculations in numericals, we consider their relative atomic masses. Another term is absolute. Another term is absolute atomic mass. We have done relative atomic masses. So here what we are doing, we are comparing the masses of one atom with 1/12 the mass of one atom of carbon 12. Now next term is absolute atomic mass. क्या होते हैं ये absolute atomic mass, जिनको हम exact atomic masses भी कहते हैं? तो they are nothing. They are actually the mass of one atom, or exact mass of one atom in grams or kilograms. Mass of an atom in gram or kilogram, right? So if we are having atomic masses in AMU or U, we can convert it into absolute atomic masses by multiplying the value
by multiplying the relative atomic masses with the value of 1 AMU. For example, I told you that the relative atomic mass of oxygen is 16 AMU or U. So what will be its absolute atomic mass? So just to calculate atomic mass, we will multiply this value 16 with the value of 1 AMU. So now we have to see what is the value of 1 AMU in gram. Or the relative atomic masses are given, I told you, in terms of atomic mass unit. What is the definition of atomic mass unit? So atomic mass unit is 1/12. It is 1/12 of the mass of one atom of C12. Atomic mass unit is 1/12 of the mass of one atom of carbon 12. Experimentally, it was found that the mass or actual mass or exact mass of one carbon atom is equal to 1.9924 into 10 raised to power minus 23 gram. Right. अब we are saying that 1 AMU is 1/12 the mass of one atom of carbon 12. तो the mass of one atom of carbon 12 is this. इसका 1/12 हमें करना है. We can write this way into 1/12 कर सकते हैं, or we can write this way upon 12. So when we will solve this, we will get the value 1.66 into 10 raised to power minus 24 gram. This is the value of 1 AMU. We can write it in kg also. अगर kg में लिखना होगा तो this value can be will be 1.66 into 10 to minus 27 kilogram. So this is about AMU or atomic mass unit. Say for example, the relative atomic mass of oxygen is 16 AMU. और हमसे पूछा गया है कि इसका एक्चुअल मास क्या होगा, एग्जैक्ट मास क्या होगा, या ग्राम में इसका मास क्या होगा. ठीक है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इस मास को ग्राम में. ऑक्सीजन का मास 16 AMU. सिंस the value of 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to minus 24 gram. Therefore, we will multiply 16 with the value of 1 AMU, that is 1.66 into 10 to minus 24. So we will get 26.56 into 10 to the power minus 24, which can be written as 2.656 into 10 to the power minus 23 gram. Right. So now two terms are clear to us, that what are relative atomic masses and what is absolute mass. Now we will jump to another subtopic, very important one, Avogadro's number. This also you have done in your class 9th science. Avogadro's number, which is represented by Na. N और A क्या है इसमें, तो N is for number and A is Avogadro. तो Avogadro नंबर क्या वैल्यू होती है इस Avogadro नंबर की, तो Avogadro नंबर इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23. राइट. कैसे डिफाइन करते हैं हम Avogadro नंबर को, तो Avogadro नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. पार्टिकल्स क्या हैं? पार्टिकल्स यू नो कि जो स्मॉल एंटिटीज़ हैं वो पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस एक्सेट्रा हो सकते हैं, तो ये पार्टिकल्स हैं. तो Avogadro नंबर को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. राइट. तो वी कैन से कि Avogadro नंबर और 6.022 into 10 raised to power 23 is equal to 1 mole.
अब क्वेश्चन कम्स दैट हाउ दिस नंबर वॉज कैलकुलेटेड, ये नंबर आया कहाँ से, इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ है। तो हम थोड़ा सा उसमें भी देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ है। एवोगैड्रो नंबर निकालने के लिए हमने कार्बन को ही लिया है, कार्बन का हमने मोलर मास लिया, मोलर मास ऑफ कार्बन, मोलर मास ऑफ कार्बन। अभी आगे हम बात करेंगे मोलर मास क्या है। ये एक्चुअली यहाँ पे जो मोलर मास है वो है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड इट इज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट मास ऑफ कार्बन या absolute mass of one atom of carbon, right? absolute mass, कार्बन के एक एटम का मास। we know कि कार्बन का जो मास होता है, एटॉमिक मास यूनिट में बात करें तो जो कार्बन का मास होता है वो होता है 12U, और जब मोलर मास में हम बात करते हैं तो मोलर मास में भी नंबर सेम रहता है 12, लेकिन ये ग्राम में आ जाता है 12 ग्राम, और इसको हम डिवाइड करेंगे एब्सोल्यूट मास ऑफ वन कार्बन एटम, जो अभी हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि एक्सपेरिमेंटली ये इतना निकाला गया है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, राइट। ये ग्राम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि क्या वैल्यू आनी है, जो वैल्यू आएगी वो यही है आपकी, जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर आ रहा है आपका, एंड दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल। ये आपका 1 मोल है, या 1 मोल इज इक्वल टू दिस है 6.022 या फिर एवोगैड्रो नंबर। ये आपको याद रखना है इसको कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है। और एवोगैड्रो नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपल है, एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब we will come to the topic mole concept. We will talk about our topic of today, that is mole concept. Mole क्या है? Mole is just a number. Mole is just a number. It is nothing. अभी mole हमने निकाला, mole क्या है? Mole is equal to 6.022 into 23. It is just a number. ठीक है? कौन सा नंबर? एवोगैड्रो नंबर। The amount of substance containing atoms, ions or molecules equal to Avogadro number is only called mole. मतलब क्या हुआ, अगर हम कह रहे हैं हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का क्या मतलब हुआ? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब हुआ वी आर हैविंग 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हुआ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब, कि अगर हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो कितने हाइड्रोजन एटम है? 1 मोल की वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23, ये नंबर आ जाएगा यहाँ पे, इतने एटम्स हैं हमारे पास। और यही अगर हम बोलेंगे कि हमारे पास हाफ मोल है, हाफ मोल और 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो इस नंबर को हम डिवाइड कर देंगे 1/2 से, यस का हाफ कर देंगे, तो वी विल गेट 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। सिमिलरली अगर हमसे कहा जा रहा है हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारे पास हैं। ये एंटिटी स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि हम किस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। हम हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम एटम्स की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, या मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटिटी स्पेसिफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ इतना कहना है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है या फिर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे तो H2 हो जाता है, और हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो सिर्फ H आएगा हमारे पास। अब क्वेश्चन कम के मोल है क्या बेसिकली, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि मोल क्या है। एज आई जस्ट सेड कि मोल जो है वो एक नंबर है। मोल आया कहाँ से? मोल बेसिकली, मोल एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है हीप और पाइल, या जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं एक ढेर, किसी चीज़, बहुत सारी चीज़ का एक ढेर। तो मोल जो है वो लैटिन लैंग्वेज से आया है और इसका मतलब है हीप और पाइल, ठीक है। और किस लिए यूज़ होता है? तो काउंटिंग के लिए यूज़ होता है। सिंपल, मोल इज़ यूज फॉर काउंटिंग।
काउंटिंग द सब्सटेंस, काउंटिंग द पार्टिकल्स, काउंटिंग के लिए यूज होता है। और क्या काउंट करेंगे हम इससे स्मॉल एंटिटीज को काउंट करते हैं। इट इज यूज फॉर काउंटिंग, आई राइट द सेंटेंस ओवर हियर, इट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग small entities in chemistry like atoms, molecules, ions, electron, proton, etc. right? तो सिंपल है कि मोल क्या है, मोल काउंटिंग के लिए यूज़ होता है। हम काउंटिंग के लिए और क्या यूज़ करते हैं डेली लैंग्वेज में या डेली अपना जब हम बात करते हैं कोई चीज़ को काउंट करना है तो हमारे पास एक जैसे आता है डजन हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारे पास 4 डजन्स पेंसिल हैं या 2 डजन एप्पल्स हैं। तो जब हम 2 डजन की बात करते हैं तो 1 डजन वी नो 1 डजन इज इक्वल टू होता है 12, तो 2 डजन का मतलब हो गया 24। अब 24 को अगर हम कैलकुलेशंस में ले रहे हैं या उसको अगर हमने डजन में कंप्लीट कन्वर्ट कर लिया और हम 2 बोल रहे हैं तो कैलकुलेशंस हमारे जितनी भी हमारे नंबर्स छोटे होते चले जाएंगे, हमारे कैलकुलेशन सिंपल होते चले जाएंगे। ठीक है ना? तो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम यहाँ पे मोल कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। तो दिस कंसेप्ट इज़ वेरी यूजफुल इन केमिस्ट्री बिकॉज इट डील्स विद वेरी स्मॉल नंबर्स इंस्टेड ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़। और जब लार्ज नंबर हमारे पास नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हो जाएंगे। जैसे प्लैनेट अर्थ से और मून तक का डिस्टेंस बताना हो, अगर आप उसको मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स में बताने लगेंगे तो आपको एक बहुत ही ह्यूज नंबर मिलेगा और वो याद रखना और कैलकुलेशंस अगर कुछ करने हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट है। इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम माइल्स में डिस्टेंस को बताने की कोशिश करेंगे तो नंबर थोड़ा हमारा छोटा हो जाएगा, और नंबर छोटा हो जाएगा तो वो कन्वीनियंट हो जाता है हर तरीके से, चाहे कैलकुलेशन का पर्पस हो चाहे याद रखने का पर्पस हो। तो मोल कंसेप्ट जो है वो कैलकुलेशंस को सिंपल ईजियर बनाने के लिए किया गया है कि जहाँ पे भी हमारे पास लार्ज क्वांटिटीज़ हों, फ्रैक्शन में कुछ आ रहा हो, उसको हम सिंप्लीफाई कर लें और हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि ये कहना कि हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 मोल हमें अपने कैलकुलेशन में लेना, जस्ट 1 लेना बहुत आसान है। इंस्टेड ऑफ दिस के 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन में हम 6.022 × 10⁻23 को यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत ही कैलकुलेशन हमारे लेंदी होते चले जाएंगे उससे। Alright, now let's see some other topics or headings which we use in mole concept, and these are number 1 GAM. What is this GAM? It is gram एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास है। क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास? अभी हमने एटॉमिक मास की बात करी कि एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ 1 एटम। एक एटम का जो मास है उसे हम एटॉमिक मास बोल रहे हैं। ये एटॉमिक मास जो है हमने कहा रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं, वो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हमने पीछे किए। एब्सोल्यूट एटॉमिक मासेस होते हैं, यानी कि एग्जैक्ट मासेस इन ग्राम। अगर एक एटम के मास को हम ग्राम में बता रहे हैं, एब्सोल्यूट मास बता रहे हैं, तो वो हो जाएगा। तो फिर ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स, और किस यूनिट में? इन ग्राम्स। ग्राम्स में आएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम। ठीक है ना? एक एटम की बात नहीं हो रही है, 1 मोल ऑफ एटम्स की बात हो रही है ग्राम में। एब्सोल्यूट मास में क्या था? एब्सोल्यूट मास में हम सिर्फ एक एटम के मास की बात कर रहे थे। ठीक है? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था? रिलेटिव एटॉमिक मास में हम कार्बन के रिस्पेक्ट में बता रहे थे एटम के मासेस। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास है 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम्स। 1 मोल ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ एटम्स का मतलब क्या हुआ? हम कितने एटम्स की बात कर रहे हैं? जो 1 मोल की वैल्यू होती है, और 1 मोल की वैल्यू कितनी है? 6.022 × 10⁻23। ठीक है? तो हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। कैलकुलेट करके देखते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ऑक्सीजन का ही एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो था ऑक्सीजन का या जो है ऑक्सीजन का, वो है 16U। ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। यू में या AMU में जब मासेस लिखे हुए हो तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है ना? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की बात करें तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एग्जैक्ट एक एटम का मास कितना आएगा? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कितना होगा?
कुछ नहीं करना है हमें सिंपली क्या करना है, जो भी AMU में मास दिया हुआ है 16, उसको 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, और 1 AMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये आ गया हमारा एब्सोल्यूट मास। ठीक है, अब हमें ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, और ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस का मास होता है, 1 मोल ऑफ एटम का मास होगा। जब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एटॉमिक मास है तो 1 मोल ऑफ एटम्स का मास होगा। तो ग्राम एटॉमिक मास अगर हम निकालें, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 16 इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, उसको हमने 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई किया, और अब हम उसको 1 मोल से, क्योंकि 1 मोल ऑफ द एटम का मास होता है ग्राम एटॉमिक मास, तो हम उसको 1 मोल से, या फिर जो 1 मोल की वैल्यू है दैट इज 6.022 इंटू 10⁻22, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 नहीं 23। ठीक है, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप मल्टीप्लाई करके इसको देखेंगे आपको लगेगा कि मैम ने तो फटाफट लिख दिया। वो इसीलिए लिख दिया क्योंकि जब हम रिलेटिव जो हम लिख रहे हैं पहले, अच्छा उसको लिख लेते हैं कि जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी 16। अब आपको लगेगा कि मैम ने तो इतनी फटाफट से लिख दिया, क्यों लिख दिया? वो इसलिए लिख दिया क्योंकि जो भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, जैसे ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 16 है, तो जब हम ग्राम एटॉमिक मास उसका निकालेंगे, ठीक है, नहीं 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस का मास निकालेंगे, नंबर वही आता है, नंबर चेंज नहीं होता है। तो अगर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है, तो ग्राम एटॉमिक मास यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का जो मास होगा वो होगा 16। यूनिट होगी या नहीं होगी वो भी देख लेते हैं। 16 की कोई, जो 16 रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा था उसकी कोई यूनिट नहीं है। 1.66 के साथ हमने यहाँ पे ग्राम लिखा है, और जो एवोगाड्रो नंबर है वो भी, उसकी भी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि उसमें भी हमने मोलर मास किया था अपॉन 1 एटम का, कार्बन के 1 एटम का मास लिया था, दोनों ग्राम में थे, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया था, हमारे पास कोई यूनिट नहीं आई थी, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे जो यूनिट आ रही है वो क्या है, ग्राम। ये निकल के आया आपका ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास। तो आई होप जितने टर्म्स हैं वो आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे कि हम जो टर्म्स यूज़ करेंगे यहाँ पे उसकी मीनिंग क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास आ गया। रिलेटिव एटॉमिक मासेस यू में है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास एक एटम का मास है इन ग्राम, और जब हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो इसका मतलब हम 1 मोल ऑफ एटम्स की बात करते हैं। जैसे ग्राम एटॉमिक मास है, ऐसे ही हमारे पास ग्राम मॉलिकुलर मासेस भी होंगे। जब एटम के मासेस की बात करेंगे तो हम मॉलिक्यूल के भी मासेस की बात करेंगे, तो GMM लिखते हैं। GMM क्या है? इट्स ग्राम मॉलिकुलर मास। ग्राम मॉलिकुलर मास, ग्राम मॉलिकुलर मास। जिस तरह से ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल ऑफ एटम का मास था, वैसे ही ग्राम मॉलिकुलर मासेस जो हैं ये है मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मास है। और मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम से मिलके बने होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, और ये भी ग्राम में ही निकल के आएगा। इसका भी कोई हम एक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालें, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ CO2 कैसे निकलेगा, ये आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया गया है। कार्बन का मास यूनिफाइड स्केल पे है 12, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम लगे हुए हैं, तो 16 इंटू 2 यानी कि 32 हो जाएगा, और हमारे पास जो आएगा वो होगा 44U। तो 32 प्लस 12 मिला के हो गया हमारे पास 44U। ये निकल के आया रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसी को अगर हमें एब्सोल्यूट एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हमें क्या करना है, 1U या 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर हमें ग्राम मॉलिकुलर मास निकालना है, तो ग्राम मॉलिकुलर मास मतलब 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल का मास है, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 जो 1 AMU की वैल्यू है, और 1 मोल की वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया। क्या आना चाहिए बताइए? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि जिस तरह से जब हमने ग्राम एटॉमिक मासेस की बात करी थी, तो हमने कहा था कि किसी भी एटम का मास जो है जब ग्राम में हम निकालते हैं तो वो वही आता है जो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। सिमिलरली जब हम इसको यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे वैल्यू को, तो ये यही नंबर आएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेटिव एटॉमिक मास था, दैट इज 44। बस क्या होगा यहाँ पे आ जाएगी यूनिट ग्राम। तो GMM क्या है? GMM इज ग्राम मॉलिकुलर मास, और ग्राम मॉलिकुलर मास क्या है? इट्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिकुलर मास आया है। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल होता है, तो इसका जो मास आ रहा है वो है 44।
Okay, dear children, now we summarize the entire class through this flow chart, right? That what we have done today, we were discussing actually the terminology used in mole concept. We have seen that we have two terms, atomic masses and molecular masses. Atomic mass की जब हम बात करते हैं, that means we are talking about the mass of one atom only, one atom. क्या atom हो सकते हैं? For example, sulfur atom, sodium atom, ऑक्सीजन आटम, है ना, नाइट्रोजन आटम, सिर्फ एक एटम की बात होगी. अगर एक एटम की बात हो रही है, एक एटम के मास की बात हो रही है, तो एटॉमिक मास, जिसको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास या तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं या एब्सोल्यूट एटॉमिक मासेस हैं. ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मासेस को हम यूनिफाइड स्केल पे बताते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है 23U, और अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 14U. अब अगर हमसे पूछा जाए एक एटम का मास, तो एक एटम के मास को जब हमें ग्राम में बताना होता है तो वो हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास. उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जिस भी एटम का मास हमसे पूछा जा रहा है उसका हम रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं और 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास एब्सोल्यूट एटॉमिक मासेस आ जाते हैं. ठीक है, सिमिलरली जैसे एटॉमिक मासेस हैं वैसे ही हमारे पास मॉलिक्यूलर मासेस हैं. मॉलिक्यूलर मासेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है. ठीक, इसके मॉलिक्यूलर मासेस आपको कैलकुलेट करना पहले बताया गया था कि किस तरह से हम मॉलिक्यूलर मासेस निकालते हैं, और ये मॉलिक्यूलर मासेस जो हैं वो भी हमारे हर इंडिविजुअल एटम के मास को एडअप करके या सम करके ऑब्टेन होंगे. फिर हमारे पास एक तीसरा टर्म है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मोल कंसेप्ट में हम यूज करते हैं, वो है मोलर मास. मोलर मास, मोलर मास क्या है? मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स. कोई भी पार्टिकल्स अगर हमारे पास हैं, पार्टिकल्स का मतलब क्या है? पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल एसेट्रा. तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स को हम बोलते हैं उसका मोलर मास, और 1 मोल इज इक्वल टू होता है एवोगाड्रो नंबर के, और एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू दिस. तो जो टर्मिनोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एटॉमिक मासेस हैं, हमारे पास मोलर मासेस हैं, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है. ठीक है, एटॉमिक मासेस को हमने बोला दो तरह से आ रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास और एब्सोल्यूट एटॉमिक मास. इसी तरह से मोलर मासेस को भी जब हम क्लासिफाई करते हैं तो अगर हम एटम के मोलर मासेस की बात कर रहे हैं तो वो हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास, जिसकी एब्रीविएटेड फॉर्म है GAM, ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूल्स के मोलर मासेस की बात कर रहे हैं, यानी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसका एब्रीविएटेड फॉर्म है GMM. तो एटम्स है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स हैं. इन केस अगर हमारे पास गैसेस हैं तो गैसेस का वॉल्यूम होता है. ठीक है, तो गैसेस का वॉल्यूम है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है MV. व्हाट इज दिस MV? इट्स मोलर वॉल्यूम. तो अगर हम मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, हम जो हमारी गैसेस हैं उनके 1 मोल की बात कर रहे हैं. मोलर वॉल्यूम, 1 मोल गैसेस के पार्टिकल्स हमारे पास होंगे. और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो जो जितनी भी गैसेस हमारी हैं वो सारी की सारी, या फिर हम ये कहें कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस अगर हमारी है और उसका हमारे पास 1 मोल है, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, उसके लिए कंडीशंस है कि किन कंडीशंस पे हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP और STP. क्या फुल फॉर्म है इसका? इट्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एंड STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. यानी अगर हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर लेके, और कितना स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, और कितना स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, इट्स नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 ATM प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा. तो कोई भी गैस अगर हमारी है और उसका 1 मोल अगर हमारे पास है, 1 मोल, समझ रहे हैं ना, 1 मोल यानी कि 6.022 × 1023 हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास हैं, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वो करेगी 22.4 लीटर. या फिर अगर हम उसको ml या cc यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखें तो इट इज़ 22400 वैल्यू आ जाएगी. और हमने क्या देखा, हमने देखा कि 1 मोल होता क्या है, तो 1 मोल या मोल जो है वो काउंटिंग के लिए यूज़ होता है, और 1 मोल जो है वो होता है इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर, और एवोगाड्रो नंबर इन टर्न इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर है. और पार्टिकल्स, बार बार बात हो रही है कि पार्टिकल्स हैं क्या, पार्टिकल्स हमारी केमिस्ट्री में हमारे एटम्स हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये आज की क्लास की समरी है जिसमें हमने मोल कंसेप्ट में यूज़ होने वाले टर्म्स को समझा है.
नेक्स्ट क्लास में हम मोल कंसेप्ट में जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं वो फॉर्मूलाज की बात करेंगे और उन फॉर्मूलाज का कैसे एप्लीकेशन करते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो हम न्यूमेरिकल के थ्रू करके देखेंगे बेटा। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नोट्स साथ में प्रोवाइडेड हैं, आप नोट्स देख सकते हैं और उनको आप कॉपी में एक कॉपी लेकर आप उस कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। Alright students, let's quickly check our knowledge. In respect of nitrogen, if I write 14U and 14 gram, so what is the difference between these two, 14U and 14 gram? So 14U means we are talking about atomic mass. We are talking about atomic mass or relative atomic mass, and 14 gram means we are talking about 1 mole of nitrogen atom. Similarly, if we talk about water molecule H2O, so H2O is a molecule. You know how to calculate the molecular mass for this. So the molecular mass of H2O is, there are 2 hydrogen and each hydrogen is having atomic mass of 1. So 2 hydrogen means 2 plus oxygen ka mass is 16 is equal to 18. So if I write 18U and 18 gram, दोनों में difference क्या है? 18U means we are talking about mass of 1 molecule of water, mass of 1 molecule of water, ठीक है? And 18 gram means we are talking about 1 mole of water molecule. तो I hope difference clear है कि what is the difference between relative atomic masses and what are molar masses. Molar masses means mass of 1 mole of substance and atomic masses means the mass of only 1 atom. तो अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, let's take one more example. CO2, carbon dioxide, the molecular mass is 44. So if I writing 44U, so it means I am talking about the mass of 1 molecule of CO2, and if I am writing 44 gram, so that means I am talking about 1 mole of carbon dioxide molecules. 1 mole of carbon dioxide means I am talking about 6.022 into 10 to the power 23 molecules of CO2. And this is mass of 1 molecule only. 1 molecule. Right? तो अपनी क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट के फॉर्मूलाज और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.